صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے تھے کہ قرب قیامت کچھ لوگ نماز پڑھیں گے، قرب قیامت کچھ لوگ نماز پڑھیں گے، داڑیاں رکھیں گے، دین کی بات خوب کریں گے، بظاہر مسلمان کہلائیں گے، مگر حقیقت میں وہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے۔ ایسے لوگ ہی نیکوں کی قبروں پر جانا بدعت اور شرک کہیں گے۔ اس لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بزرگوں، دوستو، آج میں آپ کے سامنے 5 شب برات آج آنے والی ہے۔ آج 14 شعبان المعظم ہے اور رات آنے والی 15ویں شب ہے، جس کے بارے میں مسلسل روزانہ بیان کیا جا رہا ہے اور روزانہ آپ کو بیان سنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج میں 5 باتیں لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس بیان کو آپ پورا سماعت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی پورا سنیں گے تبھی آپ کو اچھا لگے گا۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ تو یہ شعبان المعظم کا مہینہ مقدس ہے۔ حضور فرماتے ہیں، شعبان شغری و رمضان شغر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو جو رات آنے والی ہے 15ویں شب، اور 5 ایسی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، غور سے سنیں۔ 5 وہ باتیں کیا ہیں؟ تقسیم امور ہے، اور نزول رحمت ہے، اور فیضان بخشش ہے، قبول شفاعت ہے، فضیلت عبادت ہے۔ 5 ایسی باتیں ہیں جو شب برات میں 5 برکتیں خاص ہیں۔ آج میں آپ کو وہ بتانے آ رہا ہوں۔ دوستو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے تقسیم امور یعنی کام بانٹنے کا مطلب بیان فرمایا ہے۔ تقسیم امور کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کام بانٹنے کا مطلب بتایا ہے۔ تقسیم امور کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا، سال بھر میں جو کچھ ہوگا، سال بھر میں جو کچھ ہوگا وہ لوح محفوظ پر لکھ دیا جاتا ہے۔ سال بھر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے، یعنی اللہ پاک لوح محفوظ پر لکھ دیتا ہے۔ رزق بھی لکھ دیتا ہے، موت بھی لکھ دیتا ہے، حیات بھی لکھ دیتا ہے، بارش، یہاں تک کہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں 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 حج کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث الدر المنصور کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان شب برات میں کیا ہے یہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث کی روشنی میں بیان ہو رہا ہے، ماشاءاللہ دوستو، سننے کی بات ہے۔ حدیث شریف میں امیر المؤمنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو تم لوگ رات میں عبادت کرو اور دل میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں زندو بنے کے وقت سے آسمان دنیا پر تجلی رحمت کا اجلال، تجلی رحمت کا نزول فرما کر، نزول اجلال فرما کر اعلان فرماتا گیا، کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی رزق کا طلبگار ہے، رزق مانگنے والا ہے، اس کو رزق عطا فرما دوں؟ کیا کوئی رزق مانگنے والا، کیا کوئی مصیبت زدہ ہے، یا کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی مصیبت میں مبتلا، پریشانی میں مبتلا ہے، میں اس کی پریشانیوں کو دور فرما دوں؟ کیا کوئی ایسا اور ایسا 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 فلا 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 فلا، یعنی اللہ
अल्लाह पाक ऐलान फरमाता है मगरिब के बाद से ही रात शुरू होने से अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ऐलान करता रहता है और यहाँ तक कि सुबह सादिक आ जाती है। दोस्तों, है कोई ऐसा जो मेरे रब के जैसा? कोई नहीं है पूरी दुनिया में, पूरी आलम में, सारी कायनात में जो मेरा रब अपने बंदों से इतना मेहरबान है, अपने बंदों से मोहब्बत करता है। ऐलान फरमाता है कोई मुझसे मांगने वाला, है कोई बीमारी से छुटकारा मांगने वाला, है कोई मुसीबत ज़दा जो तकलीफों से छुटकारा मांगे, है कोई रिस्क मांगने वाला, मैं उसको रिस्क अता कर दूं, है कोई फला फला यानी अपने कामों की हाजतें पूरी करने वाला, मैं उसकी हाजत को पूरा कर दूंगा। दोस्तों, ये शाम के रात शुरू होने से अल्लाह पाक ऐलान फरमाता है कोई नहीं इतना मेहरबान जितना मेहरबान है दोस्तों हमारा रब्बे करीम, हमारे ऊपर अपनी रहमतें कामिला अता फरमाता है। और ये ऐलान रात भर होता रहता है यहाँ तक कि फजर में मुदहार हो जाती है, सुबह सादिक हो जाती है। तरगीब व तरहीब की हदीस है, शब बारात में रोजी लिख दी जाती है। दोस्तों, कुछ लोग कहती हैं शब बारात कहाँ जायज़ है, शब बारात कहाँ जायज़ है, रात में जागना कहाँ जायज़ है? उन लोगों को जवाब दे देना कि रात आ रही है, फरमाने मुस्तफा है, हम नबी की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, इसलिए तुम मानो ना मानो हम तो मानेंगे, रब के फरमान पर चलेंगे, हुजूर की सुन्नतों पर चलेंगे और शब रात में जागेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे। ये हमारी किस्मत में है, ये सुन्नियों की किस्मत में है। शब बारात में रोजी लिख दी जाती है। हदीस शरीफ में है मुसलमानों की माँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, अगर क्या तुम चाहती हो कि शाबान के 15वीं शब में क्या होता है? उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इरशाद फरमाइए क्या होता है? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात में इंसान का बच्चा जो साल पैदा होगा लिख दिया जाता है। लोगों, दुआएं मांगना रब की बारगाह में, अल्लाह पाक इस रात की बरकत से जिसको औलाद ना औलाद मांगे अल्लाह लिख देता है, बेटा हो या बेटी जो भी औलाद होगी अल्लाह लिख देता है, वही साल पैदा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और जितने लोग मरेंगे उन्हें भी लिख दिया जाता है। अल्लाह अकबर। जिनको मौत आके दबोच लेगी उनके नाम भी लिख दिए जाते हैं, फुला 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 जाने वाला है, वो इस साल में चला जाएगा। देखा दोस्तों, कितने लोग चले जाते हैं, कितने लोग हमारे सामने से गुजर जाते हैं, तो वो भी लिख दिया जाता है और लोगों के सारे अमाल पेश किए जाते हैं। इस रात में हमारे अमाल पेश किए जाएंगे। हमने पूरा साल क्या किया है, हमारे अमाल पेश किए जाएंगे, हमारे गुनाहों को पेश कर दिया जाएगा, हमारी नेकियों को पेश कर दिया जाएगा और उनकी रोजियां भी उतार दी जाती हैं, यानी लिख दी जाती हैं। मिशकात शरीफ बेहक़ी की हदीस शरीफ है, दो हदीसों से साबित है ईमान वालों, शब बारात ऐसी मुबारक रात है कि हमारे प्यारे रब तबारक व तआला दिन डूबने के बाद से ही बेशुमार रहमतें दुनिया वालों पर नाजिल फरमाता है और बेसाब रोजी फरमा दे अता फरमाता है, बेसाब रोजी उनके लिए लिख देता है और बेशुमार लोगों को बख्शिश देता है, अनगिनत लोगों को बला मुसीबत और बीमारी से रिहा फरमा देता है। तो हमें चाहिए कि रहमत और बरकत में डूबी हुई शब बारात की कदर करें और उस रात में जाग कर इबादत करें, दुआ मांगे, जिक्र नात की महफिलों को सजाएं, कलमा दुरूद शरीफ की कसरत करें ताकि अल्लाह ताला खुश हो जाए और ढेरों रहमतें बरकतें अता हो, अल्लाह पाक हमें अता फरमाए। मेरे प्यारे दोस्तों, शब बारात में हज करने वालों के नाम लिख दिए जाते हैं। है कोई जो कहता है कि हम पैसे के बलबूते बच कर लेंगे? ना, मेरा रब चाहेगा तो हज करेगा, मेरा रब ऐलान करेगा, हुक्म देगा तो हज करेगा। पैसा एक तरफ है, अल्लाह का हुक्म एक तरफ है। यानी शब बारात में हुजूर फरमाते हैं, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाते हैं, ऐ आयशा, मैं शब बारात में वो काम बताऊं जो रब अता फरमाता है? हजरत
हजरत आयशा करती हैं आका जरूर इरशाद फरमाइए। हुजूर फरमाते हैं शब बारात में हज करने वालों के नाम लिखे जाते हैं, इसलिए तो बहुत से के नाम रह जाते हैं, बहुत से के आ जाते हैं, जिनके आ जाते हैं उनके लिखे जाते हैं, जिनके नहीं आते उनके नाम नहीं आते हैं तो वो नाम नहीं लिखा जाता है। पता चला हज का फरमान, हज का परवाना भी रब के हुक्म से मिलता है। हदीस शरीफ में है, ऐ ईमान वालों सुनो, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमने अपने महबूब अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है 4 रातों में अल्लाह ताला खैर और बरकत के दरवाजे खोल देता है। एक रात उनमें शाबान की 15वीं शब है, उस रात में मौत का वक्त, रोजी और हज करने वालों के नाम लिखे जाते हैं। 4 रातों में एक रात शाबान की 15वीं शब भी है, उस रात में मौत का वक्त, रोजी और हज करने वालों के नाम लिखे जाते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। पता चला और सुने शब बारात में मरने वालों के नाम लिखे जाते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाबान के पूरे महीने रोजे रखते, यहाँ तक के उसे रमजान शरीफ से मिलाते थे। मैंने अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको शाबान के रोजे बहुत पसंद हैं, तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ ऐ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ऐ आयशा जो शख्स भी साल भर में मरता है उसका वक्त मौत शाबान ही में लिखा जाता है, तो मुझे पसंद है कि मेरा वक्त विसाल उस हाल में लिखा जाए कि मैं अपने रब ताला की इबादत और नेक काम में मशगूल हो जाऊं। दोस्तों पता चला हुजूर पूरे महीने के रोजे रखते कि शाबान की 15वीं शब में सब कुछ लिखा जाता है, आने वाला वक्त लिखा जाता है, तो हुजूर फरमाते मेरा मौत का वक्त भी शाबान की इसी रात में लिखा जाए तो मैं रोजे की हालत में रहूं। रोजा पूरे महीने इसलिए हुजूर फरमाते, और यहाँ तक के इतने रोजे रखते शाबान के, यहाँ तक कि रमजान आ जाता था। सुने शब बारात में हर सवाल पूरा होता है। लोग कहते हैं क्या होता है रात में, क्या होता है जाग करके? हजरात शब बारात में हर सवाल अल्लाह पूरा फरमाता है। हदीस शरीफ में है फला यसअलु अहदुन इल्ला आतिया इल्ला ज़ानियतुन बिफर्जिहा और मुशरिक। शब बारात में जो शख्स भी मांगे उसे दिया जाता है, अलावा जानिया औरत और मुशरिक के, यानी जो जिना औरत करती है उसकी दुआ उसका सवाल पूरा नहीं होता, और जो मुशरिक होता है उसका सवाल पूरा नहीं होता। मुशरिक का सवाल पूरा नहीं होगा और जानिया जो औरत जिना करती है उसका सवाल पूरा नहीं होगा। तो दोस्तों आपसे गुजारिश कि इस रात में जागे, आज की वो रात आ रही है, इसमें अल्लाह रोजी अता फरमाता है, अल्लाह बरकत अता फरमाता है, अल्लाह औलाद भी लिख देता है। तो जो मांगो अल्लाह पाक वो सवाल पूरा करेगा, सवाए उसके सवाल के। जो मुशरिक होगा उसका सवाल पूरा नहीं होगा, और जो जानिया औरत होगी उसका सवाल पूरा नहीं होगा। यहाँ पर आखिरी बात बता के मैं अपनी बात को बंद करता हूँ, इसलिए के बात तवील हो जाएगी तो आप ज्यादा नहीं सुन पाएंगे। शब बारात में कब्रिस्तान जाना सुन्नत है, शब बारात में कब्रिस्तान जाना सुन्नत है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि मेरी बारी के दिन एक रात में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पाया, फिर मैंने देखा मदीना शरीफ के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद है। आप फरमाया, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, क्या तुम ये ख्याल करती हो कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे साथ अदल ना करेंगे? यानी मैं हजरत आयशा सिद्दीक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये बात नहीं है, मुझे गुमान हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे अज़वाज में से किसी के बाद तशरीफ ले गए हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ुन व जल्लुन युनज़्ज़िलु लैलतन निस्फ़ मिन शाबान इला समाई दुनिया फयग़फ़िरु लिअक्सरा मिन अददी शअरी गनम कल्ब। यानी बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं शब में रात में आसमान दुनिया की तरफ तजल्ली रहमत का नुज़ूल फरमाता है, यानी फरमाता है तो बनी कल्ब की बकरियों के बाल की तादाद से ज्यादा मेरे उम्मत के लोगों की बख्शिश फरमा देता है। इब्ने माजा शरीफ की हदीस है,
اور ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ پتہ چلا قبرستان میں جانا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اے ایمان والو، آپ نے سن لیا شب برات میں قبرستان تشریف لے جاتے تھے کون؟ حضور۔ اس سے ثابت ہوا کہ قبرستانوں پر، قبروں پر جانا ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک روایت کے مطابق ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی قبروں پر تشریف لے گئے اور قبروں کے پاس کھڑے ہو کر دعا فرمائی، قبر والوں کے لیے اور قبر والوں کے وسیلے سے امت کی بخشش کی دعا کی۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شہیدوں اور نیکوں کی قبروں پر تشریف لے گئے تاکہ میرا غلام سنی مسلمان اس وقت پریشان نہ ہو اور ان منافقوں کو جواب دے سکے کہ نیکوں کی قبروں پر جانا بدعت و شرک نہیں بلکہ باعث برکت اور سنت ہے، اور قبر والوں کے لیے دعا کرنا اور ان کے وسیلے سے دعا مانگنا بھی سنت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔